Yes, ma'am. It is Visible? visible, ma'am. Please start. Okay. Good evening, everybody. And today Good I evening, am going madam. to, good evening. And today I am going to talk on fundamentals of intellectual property rights. Okay. So, friends, what intellectual property rights are and what are the fundamental of the concept intellectual property right and what all are the facets of IPRs that I am going to discuss today with you. And my lecture will cover all these points, that is the fundamentals, facets, including patent, design, trademark, GI, and copyright. Then I'm going to demonstrate you some of the IPR databases. Then the concept of biopiracy and TKDL. And lastly, how the patenting system works in India. Okay. So all these points I'm going to cover over here. So friends, I always start my presentation with this slide on IPR. Okay. See, here you can read the thing, yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyuttanam dharmasya tadatmanam सृजाम्यहम्. Okay. एक्चुअली ये जो पिक्चर है इससे हमें द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत की याद आती है. इसमें द लाइव कमेंट्री जो थी रणभूमि की, वो ब्लाइंड धृतराष्ट्र को बताई थी संजय नामक व्यक्ति ने. राइट. सी फ्रेंड्स, वी आर नाउ लिविंग इन ICT एज. ओके. एंड in terms of research, can we assume something, that is the satellite technology was known to the people at that time also in Mahabharata age? This we can assume, okay, from these incidents. Then various weapons were used in this war, like Brahmastra, Parjanastra, Agnistra. Can't we compare all these astras and shastras with missiles, scurds, and atom bombs today? That means there is one more assumption we can make, that is weapon technology was also known to the people at that time also. See, our medical sciences is very advanced now. Now we have the green corridors also for heart transplantations, right? Then kidney transplantation uh, is possible. Then even your knee transplantation is also possible nowadays. So we assume that our medical sciences is very advanced. But when we see the example of Ganesha, it is the example of head transplantation, right? So why to create such background mythologically? Just I want to give one message, that all this creativity can be protected under intellectual property rights. Okay, all the inventions can be protected under IPRs. See friends, God has given brain, imagination and creativity to human being, and Mother Nature has blessed us with abundant of physical and biological resources. So by using these two blessings, man started creating new inventions and his own world. But in earlier era, the creations fell in a public domain, right? Because there was no IPR concept earlier. But now, as on today, we have a total regime of intellectual property rights, and we can protect our inventions, our creations. Okay. What intellectual property is? Intellectual property is the activity of human brain. It is the creation of human mind. Okay. That is called as intellectual property. हिंदी में इसको बौद्धिक संपदा अधिकार भी कहते हैं. See, we have basically two types of properties. The first one is movable property, other one is immovable property. But now the recognition has given to the third type of property, that is intellectual property, and it has to be protected. Okay.
See friends, when we talk about intellectual property, each and every term included, each and every facet of intellectual property is having its own meaning. Okay, so you should not make क्या बोलते हैं उसको, इसमें से गड़बड़ी नहीं करना चाहिए, राइट? ट्रेडमार्क मीन्स ट्रेडमार्क, पेटेंट मीन्स पेटेंट. डोंट मिक्स द concepts with each other. Okay, this is just a filler. The person who is saying all I asked was can I patent my copyrighted trademark means he is not clear with the concept, what patent is, what copyright is, and what trademark is. Okay, now basically intellectual property is divided into two broad categories. The first one is industrial property and the other one is copyright and related rights. अभी कॉपीराइट किस चीजों का होता है? एनी क्रिएटिविटी. ओके, दैट इज इट मे बी राइटिंग्स, म्यूजिकल वर्क्स, dramatic works, audiovisual works, paintings, drawings, sculptures, photographic works, architectural works, and sound recordings, and even the performances of musicians, actors, dancers, singers. And these broadcasts rights are related rights. Okay, just a second. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आता है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आता है पेटेंट फॉर इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, industrial designs, and geographical indications. Now we will see one by one all these things. Okay, see there are some other forms, aspects of IPR are also there. For example, protection of life forms, traditional knowledge, domain names, digital copyright, integrated circuits, and plant varieties and farmers' rights. See, when we talk about property, there are ownership rights. Okay, when it is intellectual property, then it becomes IPR. When idea is there and you express it in a creative way, that can be matter of copyright. If idea is there, innovation and invention is there, then it is the matter of patent. When idea is there and it gives you unique quality and its identity, that is the trademark. Then idea is there and attractive look, appearance is there, that becomes the matter of industrial design. And suppose if you do not want to disclose the things, then it can be kept confidential in terms of trade secrets. Okay, now this is a single commodity. How it can be protected from multiple directions under IPRs, that we will see. See, this is the shape of the seat. Okay, that is the matter of industrial design. Then इसके साथ में जो बुकलेट आता है इंस्ट्रक्शंस वाला, that can be copyrighted. Then the technology used in this bike, it is patented, and of course this has got the market value, TVS, that is the brand, right? So in this way it is protected under IPR from multiple directions. Then see, you can see this Coca-Cola bottle. Okay, but they have not disclosed the formula of Coca-Cola to anybody, and that is the example of trade secret. Okay, likewise you can see the pressure cooker, Premier, that is the logo, brand, that is the trademark. You can see the design, you can see the constructional features for patent rights, and of course catalog or booklet will be the copyrighted matter. Likewise, Nikon is the trademark. Attractive and appealing look of the camera can be the design, and the functioning of the camera can be patent. Now we will go some we will see how the system works in India. Okay, this IPR system comes under Ministry of Commerce and Industry, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, and Controller General is the boss of the system. Okay, and where are the offices situated? Patents and designs offices are at Kolkata, New Delhi, Mumbai, and Chennai.
Then trademark offices are there at Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, and Ahmedabad. There is only one geographical indication office situated at Chennai, and Indian Copyright Office is at New Delhi. Okay, and Nagpur is becoming the hub for IPR activities in India because in Nagpur we have Rajiv Gandhi NIIPM, that is the international level uh, training center, which is situated at Nagpur, and the special library of patent is also at Nagpur, that is patent information system. Okay, and industrial property offices come under Ministry of Industry, and this copyright office functions under Ministry of HRD Education. Okay. Here you can see this is the official website of IPR system in India, ipindia.nic.in. Okay, and here you can see the links are given. And if you want to get training in IPRs, then you can use this link. There will be a schedule for training programs. One more very important link you should explore over here, that is public search. Okay, all the Indian IPR databases, the access will be given to you at free of cost. Okay, open access databases है ये सब from this particular link, that is public search. Now I will skip this slide. Okay, now we will see one by one what patent is. Okay, patent is an exclusive right given by the government to the patentee for a limited period of time. इसमें वो क्या कर सकता है? He can use his own invention, he can sell his invention, or he can permit to use your invention to others. Okay, and as per Indian Patent Act, term of patent is 20 years, and every year you should renew the patent, otherwise it will go to public domain and anyone can use that particular invention. So this is the basic concept of patent. Now uh, there are 4 offices where filing of patent is done and their jurisdiction is decided. Okay, for the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, and Pondicherry, then Lakshadweep, then Minicoy and Amini Islands, they all will file the patent at Chennai office only. And Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, all these they will go to Mumbai patent office only. Okay, so their jurisdictions are pre-decided. These are all IPR acts and rules in India. I will not go deep into it. Okay, but these are the acts. Okay, for geographical indications, then Copyright Act, then amendments are also there. Now, we are academicians. We always want to know which are the top institutes, okay, for filing patents in India. So these are the top 10 Indian applicants for patents, that is IITs, then Chandigarh University, Shulini University, Amity University, SRM Institute of Science and Technology, Chandigarh Group of Colleges, then Bharat University, Indian Institute of Science, Galgotias University, and Lovely Professional University. Then what are the patentability criteria? Okay, the very first patentability criteria is novelty. There should be new in your invention. Okay, what invention means? An invention means a new product or process involving an interactive step and capable of industrial application. See, product or process, inventive step, and industrial application. These are the keywords. Okay, means the first patentability criteria is novelty. There should be something new in your invention. Okay, then second criteria is innovation. Okay, and the third criteria is problem solving approach. So these three are patentability criteria: novelty, innovation, and the third one is problem solving approach. See, you can see this picture. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हो the telephone.
ओके, मेरे पिया आ गए, रंगून किया है वहां से टेलीफोन वाला मॉडल आपको यहाँ दिख रहा है. नाउ वी आर इन 5th जनरेशन. ओके, आप देख सकते हो कि these are all the examples of technology advancement, right? यहाँ पे जो जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है उसके लिए लोगों ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया और उन्हें पेटेंट मिले हैं. सो समथिंग न्यू उन्होंने उसमें डाला एंड दे फाइल्ड द पेटेंट. ओके, दिस इज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. See, during lockdown period, the 2 years we have suffered a lot. But there are some new inventions in this period. You can see यहाँ पे Thai malls puts pedals in lifts to keep coronavirus at bay. हाथ का यूज कम करना है तो उन्होंने पैर में बटन्स दिए हैं लिफ्ट में. यहाँ पे आप देखेंगे कि सैनिटाइजर हमें पता था, लेकिन ये पैर से ऑपरेट होने वाला सैनिटाइजर हमने पिछले 2 साल में देखा. Then you can see this Hitwada news, that is CR's engineer developed contactless screening module to contain COVID-19. Then here one more, that is IIT Mandi makes face masks from plastic bottles to fight COVID-19 and plastic waste. So these were the inventions. Now you can see this one. This is butter stick. Okay, जैसे glue stick होती है. The innovative use of glue stick. You can see like this. You can have the butter sticks. And see, सेप्टिपिन कितना छोटा सा चीज है ये, लेकिन सेप्टिपिन was invented by Walter Hunt, and he filed the patent for that invention, and he got the patent on 10th April 1849. Okay, that is US patent number 6281, and he sold his patent rights to the Septipin for $400 at that time. Okay, and see friends, SpaceNet European patent database है ये. It is one of the largest patent database, and it is available under open access. You can freely access this particular database, and when you give the keywords safety and pin in this database, you will retrieve 1126 patents for safety pin. How it is possible? Okay, but it is possible like this. You can see, and these are known as design patents. Okay, the difference between the conventional patent and the design patent is that there the term of patent is 20 years and every year you have to renew it. But here the term of patent this design patent is 14 years and renewal is not necessary. Okay, so that is the difference. In similar way, if you see push pin, okay, uh, date of filing was 1899. You can see July 24, 1899. And in 1900, Mr. Edwin Moore founded a new company with only $112.60. His first sale was one gross, that is a dozen of dozens of push pins for $2. The next order was for $75, and his big deal of $1000, okay, to Eastman Kodak Company. And they have also got the design patent for push pin, and you can see 187 results were there in SpaceNet for this push pin, and you can see the designs. Okay, so this is called as design patent. वेलक्रो पेटेंट आप देखेंगे कि जैसे ही आप ऐसे झाड़ियों में जाते हो तो इस प्रकार का एक फल होता है, हमारे मराठी में उसको गोकरू कहते हैं, राइट? तो इससे उन्होंने एनालिसिस करके, स्विस इंजीनियर थे वो, उन्होंने वेलक्रो का इन्वेंशन किया एंड वेलक्रो का पेटेंट भी मिला है. Now, after novelty and innovation, there is one more patentability criteria, that is problem solution approach. Okay. See, this is bicycle stand. Okay. But it will take more space.
this much space. But there is an invention. This is the vertical cycle stand, right? इसमें फायदा क्या हुआ? मार्केट प्लेस में 50% स्पेस आपकी सेव होगी. Okay, so there are some pharmaceutical companies, they are working on time release tablet. Okay, so this is also problem solving approach. Then I will show you some patents which look very funny. Okay, see here, this is mustache guard. 1876 का पेटेंट है ये, आप देख रहे हो, right? Mustache guard. Then you can also see this one, animal ear protectors. Okay, then you can also see portable bath capsule. Then you can see this one, beer umbrella, है ना? बियर ठंडी अच्छी लगती है, इसलिए उसको गर्म ना होना चाहिए करके उसके ऊपर अम्ब्रेला रख दिया, बियर अम्ब्रेला. देन दिस इज जूनियर जेल, है ना? बच्चे जो है वो इधर उधर जाते हैं, एक जगह रहते नहीं, तो उनके लिए ये आरामदायक बेड उन्होंने बनाया है. ओके, दैट इज जूनियर जेल. मैं आपको एक बहुत अच्छा इन्वेंशन जो हुआ है वो बताना चाहती हूँ, एम्ब्रेस इनोवेशन. ओके, ये थर्मल बैग है जिसमें प्री मैच्योर बच्चों को रखा जाता है. एक्चुअली क्या हुआ था, एक केस हुई थी. ये जो बेबी गर्ल है उसका नाम है आयशा. तो वो प्री मैच्योर बच्ची पैदा हुई थी एंड उसका वेट था 1.1 kg ओनली. और उनके पेरेंट्स जो है वो विलेज में रहते थे. तो उन्होंने ये बच्ची के जन्म के पूर्व उनके 2 बच्चे खो दिए थे प्री मैच्योर होने की वजह से. और उन्होंने इस बार ठान लिया था कि वो सिटी में जाके ही बच्चे को जन्म देंगे, थर्ड वाले बच्चे को. तो ये बच्ची हुई, वो भी प्री मैच्योर थी. उन्होंने इंक्यूबेटर में रखा उसको काफी दिनों तक, लेकिन बाद में इनके पैसे खत्म हो गए. तो फिर ये थर्मल जो ये था डिवाइस, उसमें बच्चे को रखा गया. और कुछ दिनों के बाद में बच्चों ने अच्छा वेट गेन किया और फिर उनके माता पिता उसको अपने घर लेके गए विलेज में. सो दिस इज एम्ब्रेस इनोवेशन, आप देख सकते हो. उसके लिए पेटेंट्स भी लिए गए हैं, दैट इज थर्मल सपोर्ट के लिए ये है. नाउ नॉन पेटेंटेबल, क्या पेटेंट नहीं होता है उसके बारे में हम जानेंगे. द वेरी फर्स्ट थिंग, an invention which is frivolous or which claims anything obviously contrary to the well established natural laws. जो भी नेचुरल लॉज है, सिद्धांत है, उसके अपोजिट जाते हुए अगर आप कुछ मशीन डिवाइस करते हो, कोई इन्वेंशन करते हो, दैट इज नॉट पेटेंटेबल. देन चोरी करने के नायाब तरीके पेटेंट नहीं होते, है ना? आपने शालीमार पिक्चर देखा होगा, उसमें कोहिनूर हीरा धर्मेंद्र चुराता है, तो वो चेक्स के टाइल्स रहते हैं, ब्लैक एंड वाइट वाले, तो उसको मैच करते 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 वो कैमरा से बच के जाता है वहां तक, राइट? सो मेथड ऑफ थेफ्ट, injuring human beings, methods of adulteration of food, these are not patentable. E equals to mc square, such formulae, standard formulae, they are the matter of copyright, so उसको patenting से बाहर रखा गया है. Then we can see mere arrangement and rearrangement of 2 or 3 technologies cannot be patented. Then treatment of human beings and animals on the earth, that is medicinal, surgical, curative, diagnostic, therapeutic, these are not patentable. Then mathematical formulae, computer programs, algorithms, these are also not patentable. Then artistic works, these are all the matter of copyright, that is cinematography, music, drama, drawing, paintings, multimedia. So these are not patentable. देन जो खेल होता है उसमें जो युक्तियाँ यूज होती है, ओके, मेथड्स ऑफ प्लेइंग गेम. जैसे दंगल में, दंगल पिक्चर था आमिर खान का, उसमें देखिए आप, अगर याद होगा आपको, तो वो 5 पॉइंट वाला एक ये था, गेम था, है ना? तो वो पेटेंट नहीं होते, एनीबडी कैन प्रैक्टिस एंड गेट मास्टरी. ओके,
Then presentation of information, again it is the matter of copyright, so it is not patentable. Then you can see inventions related to atomic energy, जहाँ पे अपने देश के सुरक्षा का कुछ ये है चीजें है डायरेक्शंस है, these are not patentable. And plants and animals in whole or part on the earth are not patentable. And of course, we have rich traditional knowledge in India. Traditional knowledge जैसे हल्दी इज एंटीसेप्टिक है ना, तो ये सब चीजें जो है that are already known to the people, so it does not fulfills the criteria of novelty, and therefore traditional knowledge is not patentable. And methods of agriculture and horticulture are not patentable. And if you file the patent application, then it will have some procedure for grant of patent. So these are all the procedures which are required to be fulfilled before the grant of a patent. Okay, now we'll go ahead. See, there is International Institute working in IPR, that is WIPO, World Intellectual Property Organization. Okay, and this WIPO homepage is this, and from this page also you will get the access for some patent database. You can see patent scope is there, global brand database is there. All these databases you can access through WIPO page also. You can see this is patent scope and this is the search window. So I gave the keywords COVID-19 and I received all these patents from here. That is patent scope, which can be accessible from the WIPO page. Okay. Then this is USPTO patent office. US patent office के पूरे patents databases आपको यहाँ से मिलेंगे. You can search for patents. Then there is one more branch of this IPR, that is plant varieties and farmers rights. देखिए ये जो होता है फार्मर अपने खेत में रिसर्च करते रहता है, नई नई चीज प्लांट्स को ढूंढ के निकालता है, हाइब्रिड प्लांट्स को, तो उसको रजिस्टर करने के लिए ये पर्टिकुलर ऑफिस है और उसके लिए एक्ट भी बनाया गया है, पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001. ओके, और ये ऑफिस है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है. एंड यू कैन सी द होम पेज ऑफ दिस ऑफिस ओवर हियर. आप देखेंगे प्लांट वैरायटी रजिस्ट्री, एप्लीकेशन स्टेटस, सर्टिफिकेट. और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इफ यू हैव सम इन्वेंशन इन योर माइंड, सो बिफोर फाइलिंग इट you should take some care. Okay, so the very first care is you can confirm that your invention is new. आपको पूरी चीजें लिटरेचर सर्च पेटेंट डेटाबेसिस का करके ये देखना है कि आपके दिमाग में जो इन्वेंशन है उसके ऊपर अभी तक किसी ने पेटेंट फाइल नहीं किया है. ओके, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए आपकी. देखिए ये जो साइंटिस्ट है उनके हुलिये से लगता है कि उन्होंने पूरा जो है रिसर्च में पूरा अपना जीवन दिया है. बट व्हाट ही हैज इन्वेंटेड द व्हील इन 21st century, and he is asking the patent examiners to grant a patent for his invention. It is not possible. So he has wasted all his energy, money and time in duplication of research. So you must confirm at the beginning stage that what you have invented, it's new. Okay. The second thing is you should not disclose your inventions to anybody till the date of filing. First of all, you go, you file your patent and discuss afterwards. Okay, because anybody can file the same invention which you have in your hand before you file. Okay, so better not to publish the invention or even disclose to any third party before applying for patent. किसी से भी discuss नहीं करना है. Don't disclose your invention, keep it secret
till the date of filing. देखिए, third thing, the invention should not be more hello, the invention should not नुसतं म्हटलं आवडत नाही. चलो. hello, am I audible? Yes, madam, you are audible. Yes, ma'am. कुणाचं तरी speaker कुणाचं तरी कल्पना चालू मॅडमचं आहे, म्यूट yes, करायला madam. सांग. मॅडम मी केलं म्यूट. प्लीज कंटिन्यू. केलंय ना? Okay. The invention should not be more complex than the problem merits. Okay. अभी देखिए, जो काम ये अड़कित्ते से हो सकता है वो करने के लिए ये महाशय ने इतना बड़ा मशीन बनाया, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसके लिए पेटेंट नहीं मिलेगा. Then the inventor should fully understand the problem. See, when you write patent document actually for filing, there are various sections in patent document. That is bibliographic details, then abstract will be there, then prior art will be there. इसके पहले कहाँ तक हुआ है पेटेंटिंग. Okay, then there will be full specification, there will be drawings, and lastly you have to write the claims. Okay, that is the very very important part of a patent document. What are the claims? What actually you want the patent rights for? Okay, so writing this specification and claims, it's a technical area, so inventor should be fully uh, prepare for that. He should not have any confusion in his mind. Okay, then why we do all these things? There should be demand for the invention. आपने 3 Idiot फिल्म देखी होगी और उसका जो लास्ट सीन है उसको थोड़ा याद कीजिए. वो जो उसका फोटोग्राफर फ्रेंड रहता है आमिर खान का, वो उसको पूछता है, बोलता है, अरे तू वही वांगुड़ी जिसके नाम पे 400 पेटेंट है और पूरा जापान जिसे ढूंढ रहा है. तो आपका पेटेंट ऐसा होना चाहिए कि इंडस्ट्री शुड अप्रोच यू और आपको रॉयल्टी पे करे वो और आपका पेटेंट लेके जाए. सो देयर शुड बी अ डिमांड फॉर योर इन्वेंशन. सो यू कैन सी दिस वन कि इन्वेंशन इज देयर, नॉवेल्टी इज देयर, 3 पैर है ट्राउजर में, लेकिन वेदर देयर विल बी डिमांड इन द मार्केट फॉर दिस इन्वेंशन? नो. ओके, and the inventor should have realistic idea of the value of his invention. अपना इन्वेंशन कितना वैल्यूएबल है इसका रियलिस्टिक आइडिया जो है वो इन्वेंटर को होना चाहिए. See, this is respected रघुनाथ माशेलकर, ex CEO of CSIR. इनका भारत में पेटेंट्स के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान है. He gave one पंचशील फॉर इंडिया. उन्होंने कहा भारत कैसा होना चाहिए, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, वुमेन सेंटर्ड फैमिली होना चाहिए, ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी एंड इनोवेशन सेंटर्ड इंडिया होना चाहिए. उन्होंने उसको फर्दर एलेबोरेट किया है. वे कहते हैं कि क्रिएटिविटी है इन्वेंशन आएगा, इनोवेशन है पेटेंट मिलेगा, लेकिन ये पेटेंट जब तक इंडस्ट्री में जाके यूटिलाइज नहीं होता है, so the cycle of development will not get completed. Okay, see, age is no bar. So this is a 10-year boy, he has patent in his name, so he has invented one fantasy game and he got the patent. Okay, there are so many inventors at work, all these famous names are there, but I would like to tell you Thomas Edison. इनके नाम पे 1093 पेटेंट्स है, थॉमस एडिसन. ओके, नाउ सी दिस स्मॉल चिप लाइक थिंग्स आर देयर. ओके, एनी गेसेस? आप कोई बता सकते कि ये क्या है? ये एक्चुअली है ब्रेड के पैकेट्स पे लगने वाला जो ये होता है टैग, वो है. ये इतना सा छोटा सा चीज है, लेकिन उसके लिए कितने पेटेंट मिले हैं आप देख सकते हो.
इतने सारे पेटेंट उसके लिए मिले, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस करके दे हैव अप्लाइड फॉर पेटेंट्स। ये प्रेसिडेंट पेटेंट है क्योंकि वो अब्राहम लिंकन के नाम पे है, इसीलिए उसको प्रेसिडेंट पेटेंट से जाना जाता है। ओके, अभी मैं आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ। ये जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो ट्रॉफी रिसीव करते वक्त, वो है पाचोरी वाला। वो एक केमिकल कंपनी में काम करते थे, और होता ऐसे था कि कुछ साल पहले इनको एनआरडीसी का बेस्ट पेटेंट अवार्ड मिला है, राइट। उसी का प्राइज लेते वक्त का एक फोटो है। एक्चुअली एनआरडीसी जो है दिल्ली, न्यू दिल्ली, वो हर साल बेस्ट पेटेंट अवार्ड देता है। और इनका इन्वेंशन ये था कि उस वक्त केमिकल कंपनीज परेशान थी, क्योंकि वो गैलेंस जो जाते थे दूसरी जगह, वहां पे मिलावट होती थी उसमें। तो इन्होंने क्या किया, ये जो केमिकल के गैलेंस होते हैं, बैरल्स होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने पिलर प्रूफ क्लोजर बनाया। ओके, जो इस प्रकार से उसको ठोक के, ये देखिए, ये ऐसे जाके ऐसे आके ऐसे फिट होता है, राइट। उसकी वजह से क्या हो गया कि वो ढक्कन खोले तो फिर से बंद नहीं होता है, तो केमिकल की जो मिलावट होती थी वो बंद हो गई। अभी देखिए, ये है आंख, आंख, ओके, आई, एंड दैट टू द आई ऑफ अ कैट। ओके, एक बिल्ली की जो आंखें होती है वो अंधेरे में चमकती है। तो एक साइंटिस्ट थे, वो अपने घर में गए रात को, वो अंधेरे में एक बिल्ली कूदी, उसकी आंख चमकी, और उनको एक इन्वेंशन माइंड में आया, एंड दैट इन्वेंशन इज दिस कैट आइज। ओके, कितना यूजफुल इन्वेंशन है ये। उसके बाद में इन्हें भी तो देना चाहिए, ओके, क्योंकि इन्होंने आग का जन्म किया था, राइट, इन्वेंट किया था आग को, आदि मानव। दिस इज जस्ट अ फीलर। लेकिन एक मैसेज यहाँ पे देना चाहती हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये चीज होती है। सो वेन एवर द इन्वेंशन कम्स योर माइंड, यू कैन गो एंड फाइल इट। ओके, you will get 12 months to develop that particular method, patent, okay, patent draft, that is called as provisional patent filing. Okay, so that facility you can avail, and you can file the things. देखिए, ये स्पेस नेट का डेटाबेस है जो कि मैंने आपको बताया। और बहुत से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग जो होते हैं, वो लिटरेचर रिव्यू जो लिखते हैं, उसमें ये पेटेंट डेटाबेस को कंसल्ट नहीं करते हैं। तो ये पेटेंट डेटाबेस को भी आप कंसल्ट कीजिए, उसका भी एक सेक्शन बनाइए, राइट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे आप ये कर सकते हो। दिस इज स्पेसनेट डेटाबेस, एंड this is how quick search, advanced search options are there. Okay, and you can use freely. See, this is actually one of the document, यूएस पेटेंट। इस प्रकार से बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ड्राइंग्स होते हैं, और ये देखिए ड्राइंग्स। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा स्पेसिफिकेशन होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है पेटेंट डॉक्यूमेंट को। एंड यहाँ पे देखिए क्लेम्स, व्हाट इज क्लेम्ड इज 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्लेम्स आप लिख सकते हो, एग्जैक्टली मोनोपोली राइट्स आपको किस पॉइंट पे चाहिए। सी, एवरी ऑफिस हैज इट्स नेशनल पेटेंट डेटाबेस, ये पूरे आप देख सकते हो, दीज आर ऑल पेटेंट डेटाबेसेस। एंड इंडिया का भी है, जैसे कि मैंने कहा था, पब्लिक सर्च के लिंक में से आप ये इंडिया के पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन के डेटाबेसेस एक्सेस कर सकते हो। सी, दिस इज पेटेंट ई रजिस्टर। आपने ये इंडियन पेटेंट आप देख रहे हो, वो इस प्रकार से होता है। दिस इज द एडवांस सर्च ऑप्शन फॉर इंडियन पेटेंट डेटाबेस। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कीवर्ड का इस्तेमाल किया, राइट, और मैंने देखा कि इतने 4723 इंडियन पेटेंट्स आए हैं। कोई भी एक पेटेंट को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बिब्लियोग्राफिक डेटा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, और उसका एप्लीकेशन स्टेटस भी आपको दिखता है बिफोर ग्रांट। अभी आप देखेंगे ये पूरा डिटेल्स आई है, दिस इज द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। और आप देखेंगे कि ये जो पेटेंट फाइल होता है उसको
पहले गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करते थे, लेकिन अभी वो उन्होंने पेटेंट जर्नल शुरू किया है, उसमें वो पब्लिश कर देते हैं। लोगों का कोई उस पे ऑब्जेक्शन होगा तो आप कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द स्टेप इन पेटेंट प्रोसीजर, पेटेंट ग्रांट प्रोसीजर। फॉर्म्स और फीस, जब जब जो जो फॉर्म्स लगते हैं, दीज आर ऑल अवेलेबल। देन ई फाइलिंग सुविधा भी इसमें है, आप घर बैठे पेटेंट फाइल कर सकते हो। और हमारा पेटेंट का जो डेटाबेस है उसको इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इन पास। दिस इज द सर्च ऑप्शंस अवेलेबल, फुल पेटेंट इज देयर, ड्राइंग्स आप देख रहे हो। ओके, तो इस प्रकार से you can get access to our national patent database also, and some international databases also. Now the second industrial property is industrial design. Actually the attractive look of the product can also be protected under IPRs, that is in the form of industrial design. ये इंडस्ट्रियल डिजाइन का टर्म होता है 10 years विथ एक्सटेंशन ऑफ 5 years, दैट इज टोटल 15 years. ये डिजाइन समझाने के लिए आई विल ओनली शो यू वन स्लाइड, आप खुद समझ जाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। एंड दिस इज द स्लाइड। देखिए, कोल्ड ड्रिंक मार्केट में अलग अलग ब्रांड है, तो आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो हर एक ब्रांड की शेप ऑफ द बॉटल जो है, बॉटल का शेप वो अलग अलग है, क्योंकि दीज आर ऑल प्रोटेक्टेड अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन। आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? दिस इज माजा, स्प्राइट, अलग अलग शेप। नाउ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, आप देख सकते हो, दीज कैन आल्सो बी प्रोटेक्टेड अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन। पेन, टूथब्रश, इनके कितने तो भी डिजाइन आपको मिलते हैं, राइट? देन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अपीयरेंस डिजाइन। देन टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी के भी आप ले सकते हो, यू कैन प्रोटेक्ट अंडर डिजाइन। टूथब्रश, एक दुकान में टूथब्रश खरीदने जाते हैं तो वो दुकान वाला हमको कितने सारे प्रकार के टूथब्रशेस दिखाता है, राइट? सो दिस इज ऑल इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन का भी डेटाबेस है, जो आप वहां से हमारे आईपी इंडिया से आप ढूंढ सकते हो, ठीक है? तो आप इस प्रकार से देख सकते हो। देन थर्ड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इज ट्रेडमार्क. व्हाट ट्रेडमार्क इज? See, friends, trademark is the most popular industrial property. The most, because trademark initially, the term of trademark will be 10 years, and after every 5 years you can renew it by paying the fees to the office. Okay, और वो कभी expire नहीं होता until you stop renewing it. Okay, that is why this is a very popular IP. And second thing is, it is popular and it has got market value. Okay, and that is the brand name, logo. Okay, so trademark is visual symbol in the form of a word, a device, or a label applied to articles of commerce as distinguished from similar goods manufactured or dealt in by others. Then trademarks may use letters and words. For example, you can see Epson, Bata, Godrej. देखिए, ये पॉपुलर ट्रेडमार्क्स है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि आंख बंद करके आपने गोदरेज बोला तो गोदरेज का जी जो है वो आपके आंखों के सामने ऐसे ही आता है ना? दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडमार्क इन आवर माइंड. Then some use combination trademarks. They may use colors, logos, letters. Okay, like Silicon Graphics. Then Java. You can see the examples. Some trademarks, they also use taglines. That is the punchlines they call. Okay, some of the famous taglines. See, we have at Nagpur one Moonlight Studio, a very big photo studio, and their caption, the tagline is, if you are not beautiful, we will make you beautiful. If you are beautiful, we will capture your beauty. तो ऐसे ही कुछ फेमस टैगलाइंस है जो मैं अभी दिखाने जा रही हूँ आपको. दैट इज, लाइफ इज गुड, इट इज एलजी. इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, इट इज बिग बाजार. कनेक्टिंग पीपल, इट इज नोकिया. Then the world's local bank, it is HSBC. You can also see अच्छा लगता है, that is Club HP.
Then it's all about Imagineering. It is L&T. जाओ तो जानो Truly Asia. It is Malaysia Tourism. And Taste Be Healthy. It is Maggi Noodles. Okay. So this is also a part of trademark. इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला. ठंडा मतलब कोका कोला. Pure for sure. These are the taglines. I'm loving it. Okay. McDonald's. Then some trademarks, they use pictures or drawings like Emerson butterfly. Okay. Apple's automotor. Then logos. See, this is a very popular logo of Apple. Then this is double arches of McDonald's. Then sound trademark is also there. They use sound in their trademark. Okay. So this is all the conditions and definitions are trademark only, but they use sound in this trademark. Okay. So these are sound marks. साउंड मार्क का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो. दैट इज विंडोज ओपनिंग साउंड. एक पिक्युलर साउंड आता है जब विंडो ओपन होती है तो, है ना. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ साउंड मार्क्स. दीज आर सम न्यूज चैनल. ओके. देखिए, आपको एक उदाहरण बताती हूँ मैं. ट्रेडमार्क का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है. सी, दिस इज बॉटल विदाउट लेबल. ओके. पानी की बॉटल है विदाउट लेबल. मैं अगर आपको बताती हूँ कि ये शुद्ध मिनरल वाटर है, आप इसको 5 रुपीज में मैं आपको बेचना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगे क्या? आप नहीं बोलोगे, नहीं लोगे. लेकिन मैं अभी जब ये बॉटल सेल कर रही हूँ और आपसे 20 रुपीज मांग रही हूँ, आप खुशी खुशी देंगे, क्योंकि उसके ऊपर में ब्रांड का नाम लिखा है, बिस्लेरी. ओके. सी, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क. देखिए, ट्रेडमार्क इज अ प्रॉपर्टी. उसका ऑक्शन का सर्वे किया गया था. ये पुराना सर्वे है, लेकिन इससे एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आएगी कि ट्रेडमार्क की वैल्यू क्या है. देखिए, ऐसे पॉपुलर ट्रेडमार्क का ऑक्शन हुआ तो सबसे पहला नंबर पे था कोका कोला, और उसके लिए बोली लगी थी $68.9 बिलियन की. दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट था. तीसरे नंबर पे IBM था. और चौथे नंबर पे नोकिया था. ये पुराना सर्वे है, लेकिन जस्ट ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी हूँ प्रेजेंटेशन में, ताकि आपको ट्रेडमार्क की वैल्यू मार्केट में क्या होती है उसका अंदाजा आए. सी, वाई बिस्लेरी? बिकॉज इट हैज वैल्यू, इट हैज रेपुटेशन, इट इज ओन्ड बाय बिस्लेरी इंटरनेशनल. ओके. और इसके ऊपर हमको विश्वास है. दैट इज द मेन थिंग. वी बिलीव इन दिस प्रोडक्ट, इन दिस ब्रांड. दैट इज एक्चुअली द थिंग. ओके. देखिए, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का बेनिफिट ये होता है कि वो चैलेंज कर सकते हैं अगर कोई मिसयूज करता है, उसको इन्फ्रिंज करता है तो. सी हियर यू कैन सी, दिस इज द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, बट द फेक प्रोडक्ट्स दे यूज लाइक दिस. अबीबास, दिस इज अदिदास. सी, दिस इज आउटलुक, दिस इज अ मैगजीन, लेकिन उन्होंने देवनागरी में इसको लिख दिया आउटलुक. तो पीपल कंफ्यूज कैसे होते हैं? उनको लगता है शायद इसी का ये हिंदी वर्जन होगा, लेकिन इसका और इसका कोई संबंध नहीं है. ओके. देन हाउ ट्रेडमार्क इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ. तो इसके लिए मैं सिर्फ ये रीड करती हूँ और आप उसको एंजॉय कीजिए. आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम ट्रेडमार्क में जीवन कैसे जीते हैं. 6 AM अजंता सिटीजन, 6:30 AM कोलगेट क्लोजअप, 7:30 AM नेस्कैफे ताजमहल रेड लेबल ताज़ा, 8 AM डेटॉल लाइफबॉय लक्स सिंथॉल, 8:30 AM किसान फ्रूट जैम मैगी टोमेटो केचप केलॉग्स, 9 AM मारुति सुजुकी हीरो होंडा TVS टोयोटा, 9:30 AM IBM Lenovo SCL HP, 10:30 AM Yahoo Rediff Gmail Hotmail, 11:30 Canon Fax Intercom, 1:30 PM McDonald's Domino's Pizza Hut Sagar Ratna, 6 PM PVR Big Cinema V Mart Easy Day, 8 PM Sony Star Plus Discovery CNN, and 10 PM Good Night All Out Jet. ओके. देखिए, हम कितने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं पूरे दिन में, आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मार्क्स.
you can see. And there are various types of trademarks. Okay, see, service mark is for service. DTDC, Taj Hotel. These are providing you the service. So their marks are known as service marks. There are ISI marks. It is certification marks. It gives you assurance that certain quality is maintained, right? So these are service marks. Okay, that is hotels, restaurants, airlines, tourist agencies, laundries, and cleaners. Their marks are known as service marks. Okay, and as I have told you, the initial registration of a trademark shall be for a period of 10 years, but may be renewed from time to time for an unlimited period by payment of the renewal fees. देखिए, फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में कैसे आते हैं? See, same color combination you can see, Vaseline. This is the correct spelling and genuine product. लेकिन मार्केट में सेम कलर कॉम्बिनेशन यूज करके वैसालीन, न्यू वैसोलाइन, ब्लू लाइन वैसोलाइन, वैसेटोलाइन, ब्लू स्टार वावलिन, इस प्रकार के फेक प्रोडक्ट्स भी बेचे जाते हैं, राइट? उसके बाद में मैं दो केसेस आपको यहाँ पे बताती हूँ. एक केस हुई थी इन्फ्रिंजमेंट की लैक्मी. लैक्मी जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने की इंटरनेशनल कंपनी है. तो जो डिफेंडेंट था, he was using the trademark like me for the same class of products. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही बेचता था, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स का नाम था like me. So it was held there was a striking resemblance between the two words. The two words are also phonetically similar. And कोर्ट ने कहा कि there is every possibility of deception and confusion being caused in the minds of prospective buyers, and the injunction was made permanent. तो लैक्मी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होने की वजह से उनको कोर्ट में पिटीशन डालने में ये होगी, सुविधा होगी. यहाँ पे कोलगेट की केस हुई थी. सेम डेंटल क्रीम बनाने वाली दूसरी कंपनी, यूजिंग द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड व्हाइट कलर्स. ओके, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को नाम दिया कॉलेजिएट. यहाँ पे भी कोर्ट ने कहा कि इट इज फोनेटिकली सिमिलर, और यहाँ पे भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स के मन में कंफ्यूजन हो सकता है, राइट? तो ये केस भी कोलगेट जीत गई. अभी ये जो है ये पेज ट्रेडमार्क का है हमारे आईपी इंडिया वेबसाइट में का, और उसमें पूरे ये सब चीज़ें ट्रेडमार्क के बारे में दी है. आपको कुछ भी जानना है तो आपको यहाँ से आप जान सकते हो. यहाँ पे भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है टीएमआर ऑफिसेस का. ओके, और ये टीएमआर का ये डेटाबेस है, उसमें आप सर्च कर सकते हो. जैसे मुझे गोदरेज के लिए सर्च करना था तो मैंने GOD 3 लेटर्स जो है यहाँ पे टाइप किए, और इतने सारे मुझे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स रिट्रीव हुए. सपोज आई वांट टू सी दिस गोदावरी, तो यहाँ पे क्लिक करने से देखिए ये सर्टिफिकेट आ जाता है गोदावरी का, प्रॉपरली इशूड, एंड दिस इज द ट्रेडमार्क. इसी प्रकार से एप्पल का देखना है, आप एप्पल के देख सकते हो, और ये सब चीजें आप देख सकते हो. कि इंटरनेशनल डेटाबेस है जो वाइपो मेंटेन करता है ट्रेडमार्क का, दैट इज नोन एज मैड्रिड एक्सप्रेस डेटाबेस. और इसमें आप देखेंगे दिस इज द सर्च पेज, और मैंने यहाँ पे होल्डर का नाम माइक्रोसॉफ्ट दिया. तो ये डेटाबेस में माइक्रोसॉफ्ट के 85 ट्रेडमार्क्स है. और इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो देखिए ये ट्रेडमार्क से आप परिचित होंगे. नाउ आई एम कमिंग टू जियोग्राफिकल इंडिकेशंस. देखिए, व्हेन अ प्रोडक्ट इज नोन बाय इट्स जियोग्राफिकल एरिया, then it can also be protected under GI, under IPRs. okay, अभी देखिए ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का जो ऑफिस है चेन्नई में, वो इंडिया में खुला अराउंड 2000-2001 के दरमियान, जब बासमती राइस का कंट्रोवर्सी चल रहा था. बासमती राइस के लिए पेटेंट लिया गया था, और वो पेटेंट के लिए हमने काफ़ी बैटल किया और हमने उसको वापस लाया.
तो हम सोचे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन लेके, क्योंकि बासमती राइस का जो अरोमा है एंड लेंथ ऑफ द ग्रेन है वो इसी क्लाइमेट में होती है, भारत पाकिस्तान में, राइट। इसकी वजह से सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस आर दार्जिलिंग टी, देन नागपुरी संतरा, चंदेरी सारी, मैसूर रोजवुड इनले, कोल्हापुर चप्पल, then you can see Solapur Chaddar from Maharashtra, Kulu shawl, then Mysore sandal soap, then rice में बासमती and नेलोर राइस आर फेमस, wheat में पंजाब और मध्य प्रदेश का गेहूं फेमस है, नागपुर का ऑरेंज, अल्फांसो मैंगो ऑफ कोंकण रत्नागिरी, then textiles पोचमपल्ली इकैट, कांचीपुरम, then कोटा डोरिया. See, these are the pictures. You can see Mysore silk, Kanchipuram sari, Solapur chadar, Kulu shawl. Then under foodstuffs, Bikaneri bhujia. Bikaner is the name of the place. Andhra Pradesh ke pickles, Lonavala chikki, Tirunelveli halwa, Agra petha. Sweet chocolates. This is Kurg orange. Kurg is the name of the place. Nanjangud banana. Then Kangra tea. This is Darjeeling tea. ये दार्जिलिंग जो है वो हमारा इंडिया का पहला रजिस्टर्ड जीआई है, फर्स्ट वन. ओके, देन दार्जिलिंग इज द नेम ऑफ द प्लेस. देन मैसूर अगरबत्ती, मैसूर सैंडल सोप, अरानमुल्ला कनेडी. देन चन्नापटना इज अ स्मॉल विलेज नियर चेन्नई, दैट इज चन्नापटना. द टॉयज आर वेरी फेमस. उसके बाद में दिस इज रोजवुड इनले ऑफ मैसूर एंड दिस इज कोयम्बतूर वेट ग्राइंडर. Then this is Balaji's, तिरुपति बालाजी's लड्डू, इसका भी जीआई हो गया है. और यहाँ पे आप देखेंगे गोवा की फेनी फेमस है, शैम्पेन, स्कॉटलैंड की विस्की, शेरी वाइन्स एंड ऑल. एंड ये जो है ये हमारे जीआई ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है. एंड दिस इज द ऑफिशियल लिंक ऑफ आवर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री. You can see all these links are given, and when you click on this you will get all the registered GI, okay, from 2003 to आप देखेंगे 12 तक के है और ये अपडेटेड है. आप देखेंगे इसको तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ आपको मिलेंगे. ओके, नाउ एक और चीज बता दूं, मैंने एक स्टडी किया था तो उसमें मुझे ऐसा पता चला कि द साउथ इंडियन स्टेट्स दे आर मोर अवेयर ऑफ GI filing. Okay, then these GIs are divided into 4 categories: agricultural products, handicrafts, manufactured, and foodstuffs. And some of the agricultural, the examples of GIs I have taken, that is this is Palakadan Matta rice of Kerala, Mysore betel leaf of Karnataka, then Malabar paper from Kerala, then 3 jasmines, Mysore jasmine, Udupi jasmine and Hadagali jasmine. Then cardamom में आप देखेंगे Alleppey and Kurk. Okay, and this is mango, आप देखेंगे नागा मिर्चा from Nagaland. Then these 3 types of mango, that is Lakshman Bhog mango from West Bengal, Khirsapati हिमसागर का mango है, Fazli of Malda and Dasheri of UP. Okay, so these are all agricultural GIs, you can see. और महाराष्ट्र से किन किन चीजों को मिला है आप देखेंगे. दिस इज पुनेरी पगड़ी, देन दिस इज भूसावल केला, नागपुर ऑरेंज, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, येवला पैठणी, then this is लोनावला चिक्की, then this is कोल्हापुरी साज एंड नासिक का अंगूर ग्रेप्स. ओके, देखिए जब भी जीआई कोई इंडिविजुअल व्यक्ति फाइल नहीं कर सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई एग्रीकल्चरल ऑफिस है, कोई एनजीओ है, कोई ट्रेड यूनियन है, they can apply for geographical indications from their area. जैसे ही आप जियोग्राफिकल इंडिकेशन को फाइल करते हो तो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का एक जर्नल होता है, उसमें वो अपलोड हो जाता है, मतलब पब्लिश हो जाता है. और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो आपको बताए जाते हैं, और सब ऑब्जेक्शंस को पूरा करते हुए अगर आप उसको
ये देते हो तो ग्रांट मिलती है, उसको जीआई नंबर मिलता है। अभी देखिए ये जो हमारा डेटाबेस है उसमें से मैंने रजिस्टर्ड को क्लिक किया तो ये देखिए ये पूरे रजिस्टर्ड है, हर एक को लिंक है, आप उसके डिटेल्स देख सकते हो। सी दीज आर ऑल रजिस्टर्ड। ओके, इसमें आप देखेंगे बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको दिख रही है। देन सी दिस इज मैसूर सिल्क, स्टेटस उसका रजिस्टर्ड है और इस प्रकार से पूरे डिटेल्स आपको मिलती है। ये GI 11 है, 11। ओके, और ये पूरा जो है ये पूरा करस्पॉन्डेंस है, आप उसको देख सकते हो। ओके, उसके बाद में गोअन फिनी का है, इट इज अंडर प्रोसेस, एप्लीकेशन नंबर इज 120। देन जो बासमती राइस कंट्रोवर्सी के लिए हमने ये चीज निकाल मतलब ये ऑफिस और ये कॉन्सेप्ट लाया था, तो वो अभी भी पेंडिंग स्टेज में है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अल्फांसो मैंगो को मिल गया है, अभी रिसेंटली मिल गया है। सी सपोज इफ यू वांट टू सी दैट इज हैदराबादी बिरयानी पैराडाइज की। ओके, हैदराबादी बिरयानी इट इज अंडर एग्जामिनेशन स्टेटस। ओके, नाउ after this industrial property, this is the last part of my lecture. देखिए, I would like to talk on biopiracy and traditional knowledge, okay? And what are the solutions we have in India? देखिए, हमारा भारत देश जो है वो सुजलाम सुफलाम है, नेचर का हमें वरदान है। हमारा जो हेरिटेज है वो बहुत रिच है, हमारा कल्चर बहुत रिच है, सुजलाम सुफलाम है हमारा देश। और आपको एक चीज बता दूं, इंडिया इज अ कंट्री विच हैज बीन नर्चरिंग अ ट्रेडिशन ऑफ सिविलाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 5000 years, and we have India's ancient scriptures. We are having four Veda, 108 Upanishads, two epics. Then we have Dharma Grantha, जैसे हिंदुओं की भगवद गीता है, ब्रह्म सूत्र. We have 18 Puranas. We have the documents like Manusmriti, Kautilya Shastra and Smritis also. ओके, तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है हमारे यहाँ पे। एंड नेचर का हमको ब्लेसिंग्स है। एंड biologically speaking, India is one of the 12 most biodiverse countries of the world. Then the whole world has got 26 agroclimatic zones and India alone has 16 agroclimatic zones. देखिए 26 एग्रोक्लाइमेटिक जोन पूरे वर्ल्ड में है, उसमें से 16 इंडिया में है। ओके, देन हमारा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि हमारे पास में रिकॉर्डेड 47,000 स्पीसीज प्लांट्स के हैं, 81,000 स्पीसीज एनिमल्स के हैं रिकॉर्डेड। ओके, एंड हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो बहुत रिच है। लेकिन ये ट्रेडिशनल नॉलेज का क्या होता है कि इट इज नॉट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। और कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को कोई सिद्धि होती है, जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक मानकापुर नाम का एरिया है नागपुर में, वहाँ पे एक शख्स है, देखिए कॉलर बोन अगर टूट जाता है तो वहाँ पे प्लास्टर नहीं होता है, आपको ऐसे ही हाथ पकड़ के रहना पड़ता है जब तक वो नेचुरली जुड़े ना, राइट। लेकिन वो यहाँ पे एक लोशन लगा के देता है आपको, जिससे वो कॉलर बोन बहुत जल्दी जुड़ जाता है। तो कभी कभी ये उस जो पर्सन का नॉलेज है वो उसके साथ ही खत्म होता है, राइट। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है ट्रेडिशनल नॉलेज। इसीलिए क्या हुआ है कि बायोपायरेसी का कॉन्सेप्ट आया है। सी यू कैन सी हमारा जो मेडिसिनल सिस्टम है इंडिया का वो आयुष से बना है। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी, राइट। तो इसमें से जो एग्री हमारा आयुर्वेद है वो बहुत बहुत रिच है। और वी हैव सम मेडिसिनल प्लांट्स जिसका आयुर्वेद में बहुत यूज किया जाता है, राइट। उसको हम इंडिजिनस नॉलेज भी कहते हैं, सॉरी। बायोपायरेसी का अर्थ क्या है? बायोपायरेसी इज डिफाइंड एज द स्टीलिंग ऑफ बायोमेडिकल नॉलेज फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। तो हमारा ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो
वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने क्या किया कि एक एक चीज चुराना शुरू किया। ओके, थेफ्ट करना शुरू किया उन्होंने। और जैसे कि हल्दी का केस हुआ था। ओके, और अभी आप देखेंगे कि इन 2002 में 80% of 4896 references of individual plant-based medicinal patents in USA related to just 7 medicinal plants of Indian origin. लेकिन 2004 में क्या हुआ, 15,000 patents related to medicinal plants of Indian origin in USA, UK and EP offices. एंड 2005 में वो नंबर ग्रो हो गया 35,000। इस गति से बायोपायरेसी बढ़ रही थी। ओके, जैसे आंवला गया, नीम गया, बाबुल गेलो, that and this was the very sensitive case of biopiracy, that is turmeric. Okay, देखिए in 1995 two expatriate Indians at the University of Mississippi Medical Center, that is Suman K. Das and Harihar Kohli, were granted a US patent. Patent number is 5401504 on use of turmeric in wound healing. ठीक है, यूज ऑफ टर्मरिक इन वुंड हीलिंग के लिए इनको पेटेंट मिला, यूएस पेटेंट मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने निर्बंध डाले हमारे ऊपर में कि यू कैन नॉट यूज हल्दी इन मेडिसिन एज एंटी सॉरी एंटीसेप्टिक। ओके, सो सीएसआर ने एक केस लिया और उन्होंने क्या किया कि द पेटेंट वाज ग्रांटेड इन 1995। तो उसके पहले के लिटरेचर में उसको ट्रेडिशनल नॉलेज दिखाने के लिए प्रूफ्स एविडेंसेस लेना शुरू कर दिया। ओके, अभी उन्होंने 32 एविडेंसेस कोर्ट को दिए कि हाउ हल्दी वी आर यूजिंग एंड प्रैक्टिसिंग इट फॉर वुंड हीलिंग पर्पस। ओके, तो उसमें से 2 ओरिजिनल जो प्रूफ्स है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप देखेंगे उर्दू में लिखा हुआ है। ओके, और ये कब लिखा गया है, 1879। पेटेंट कब ग्रांट हुआ, 1995। दूसरा जो प्रूफ है वो इस प्रकार से है, मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है, आप देखेंगे। ओके, और ये दोनों में क्या लिखा है हल्दी के बारे में वो मैं बताती हूँ। वो जो पहला है उसका अर्थ है जो उर्दू में लिखा है, हल्दी हल्दी पाउडर टेकन डायरेक्टली एज ब्लड प्यूरिफायर, क्यूर्स जॉन्डिस, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड आप यहाँ पे देखेंगे वुंड हीलिंग, वुंड इन्फेक्शंस। ये किसने लिखा है, मौलवी नूर करीम ने लिखा है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कब लिखा है, 1879 में लिखा है। मतलब तब से हमको पता है कि हल्दी जो है वुंड हीलिंग के लिए काम आती है। ये डॉक्यूमेंटेड ऐसे 32 प्रूफ्स दिए। जैसे दूसरा मैंने आपको दिखाया, हल्दी आई ऑइंटमेंट, लिवर अफेक्शंस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, वुंड हीलिंग, एंड दिस वाज रिटन इन 1867। तो ऐसे 32 एविडेंसेस कोर्ट को देने के बाद में the result was the patent was revoked. Claims 1 to 6 are cancelled. Okay, तो ऐसे हम कितना लड़ेंगे, कितना एक एक प्रोडक्ट वापस लाएंगे, दैट वाज द क्वेश्चन। सो उन्होंने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको सीरियसली लिया। जैसे नीम के भी कुछ केसेस हुए थे, वो मैं डिटेल आपको नहीं बताती हूँ, लेकिन इसके ऊपर सॉल्यूशन जो है वो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी था। तो सीएसआईआर ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने क्या किया कि हमारा हर एक पैथी जो है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा के जो क्लासिक बुक्स है वो बुक्स एक्सपर्ट्स को दिए और उनको कहा कि वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ो। जहाँ पर भी इंडियन मेडिकल प्लांट का उल्लेख है, मेंशन है, तो प्रिपेयर वन एंट्री फॉर दैट। तो वो एक्सपर्ट्स लोगों ने ये सब एंट्रीज बनाई। आप देखेंगे कि आयुर्वेदा के 75 बुक्स से दे मेड 82,665 एंट्रीज, यूनानी के 10 बुक्स से they made 1,13,800 entries, and
So many entries were prepared by the experts and it was published in TKDL website, that is Traditional Knowledge Digital Library. और इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब नोटिफिकेशन जारी किया सभी पेटेंट ऑफिसेस को कि आप जब भी पेटेंट एग्जामिन करते हो, यू शुड गो थ्रू दिस डेटाबेस, दिस इज अवर डिस्क्लोज ट्रेडिशनल नॉलेज। और ऐसा करने वाला डेवलपिंग कंट्री में इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री। तो इस प्रकार से दैट लाइब्रेरी इज एक्सेसिबल और उसका एक 1200 एंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव डेटाबेस सबके लिए खुला है। तो इसमें मैंने सर्च किया मलेरिया के लिए, सो आई गॉट ऑल दीज एंट्रीज के मलेरिया में कौन से प्लांट्स का यूज होता है। ओके, और इसकी वजह से क्या हुआ आप देखेंगे यहाँ पे कि उसके आउटकम जो है वो बहुत अच्छा है। कुछ पेटेंट्स जो ऑलरेडी ग्रांट किए थे कुछ कंट्रीज ने, वो रिवोक हो गए, कैंसिल हो गए। एग्जामिनेशन स्टेज में लोगों ने उन पेटेंट को ये किया, रिवोक किया, और इस प्रकार से आपको मिला। और एक ट्रेडिशनल नॉलेज होता कहाँ है? ट्रेडिशनल नॉलेज जनरली जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, उनके पास में ज्यादा होता है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे जो प्लांट्स है उसमें से कितने प्लांट्स मेडिसिनल यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आप देखेंगे यहाँ पे। और अलग 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 पैथी में अलग अलग स्पीसीज यूज किए जाते हैं, यू कैन सी। इसमें एक एक्सपीरियंस था कि केरला में एक कानी ट्राइब रहती है। उनका काम क्या होता है कि वो जंगल में, केरला के जंगल में लोगों को राह दिखाना, राइट। 1987 में जम्मू एंड कश्मीर से पुष्पगदन नाम के साइंटिस्ट अपने टीम को लेके गए और वहां पे उन्होंने कुछ कानी ट्राइब के लोगों को साथ में लिया, ओके, गाइड करने के लिए। अभी आप देखेंगे in December 1987, a team of scientists led by Dr. Pushpagadan was conducting an ethnobotanical survey and exploration in the Agastya Hills, okay, Western Ghats in South India, okay. और उनके साथ में दो यंग कानी मैन थे, okay. During this visit, the author and his colleagues noticed that the Kani men were not taking any food and were eating only some small dry fruits, okay. तो उनको ऐसे लगा कि ये क्या खा रहे, ओके, एंड दे वेर क्वाइट एनर्जेटिक एंड एजाइल। ये आप देख सकते हो ये चित्र। इसमें जो पुष्पगदन सर थे उन्होंने पूछा उनको, ये आप ड्राई फ्रूट्स क्या खा रहे हो, और उनसे सैंपल कलेक्ट किया। वो सैंपल लेके वो गए अपने आरआरएल जम्मू में और उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, ओके। और काफी उसमें रिसर्च करने के बाद में ये प्लांट था वो जिसके वो फ्रूट्स थे, तो उनको पता चला कि ये एंटीफटिक एलिमेंट्स इसमें हैं। तो पूरा उनका स्टडी होने के बाद, रिसर्च होने के बाद में दे फाइल 3 पेटेंट्स, ओके। और वो पेटेंट मिलने के बाद में उन्होंने उसका कमर्शलाइजेशन भी किया एक कंपनी को देके। उन्होंने एक ड्रग बनाया जीवनी नाम का, ओके। जीवनी नाम का ये ड्रग मार्केट में आया और उसका रॉयल्टी मिलना शुरू हो गया, राइट। लेकिन जिनका ये ओरिजिनल ट्रेडिशनल नॉलेज था उनको क्या मिला? उनको कुछ भी नहीं मिला। तो केरला गवर्नमेंट के ध्यान में लाई गई ये चीज कि इनका ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो वहां जाके बायो पायरेट हो रहा है। तो केरला गवर्नमेंट ने भी माना उस चीज को और उसके लिए काम किया। और अभी उसका जो भी रॉयल्टी आता है उसका 50% कानी ट्राइब को दिया जाता है और एक लमसम अमाउंट दिया गया था उनको, इंडियन रुपीज 650,000, 6,50,000। और इसकी वजह से कानी ट्राइब जो है वहाँ का, देखिए उनके पहले घर ऐसे होते थे लेकिन ये फंडिंग मिलने की वजह से अभी उनके जीवन मान में बहुत अंतर आ गया है, यू कैन सी। अभी उनके घर इस प्रकार है, पहले उनका लिविंग कंडीशन ऐसा था और अभी ऐसा है। सो फ्रेंड्स, these are all the aspects regarding IPR which I wanted to share with you. मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा और ये जो
आईपीआर है, जो कि बहुत ही क्लिष्ट विषय हम कहते हैं, तो उसको जितना इजी कर सकती थी मैंने करने की कोशिश की हूँ. सो थैंक यू सो मच. Thank you so much, madam, for your again important session. Friends, कुछ पूछना है उठे तो आप पूछ सकते हैं. येस मॅम. मॅडम, हॅलो. बोलिए सर. मॅडम, जिओग्राफिकल इंडिकेशन जे होते हाँ. इंडिकेटर, त्याच्यामध्ये आपलं सावजी जे डिश आहे त्या झाल्या असतील का रजिस्टर? त्यात स्पेशल नागपूरमध्येच मिळतं ना. अजून झालेलं नाहीयेत. आणि करायला पाहिजे मॅडम, कारण ते याच म्हणजे कोण एनजीओ त्यांनी ते रजिस्टर करायला पाहिजे, कारण ते वर्ल्ड वाईड फेमस झालंय. जेव्हा हो नागपुरात मॅच होते ना, त्याची ऍड पूर्ण ग्लोबली जाते. हो हो, बरोबर आहे. करायला आणि पाहिजे. कम्युनिटी बेस्ड ज्या काही ट्रीटमेंट असतात, म्हणजे हम्म कास्ट बेस्ड किंवा कम्युनिटी बेस्ड, त्याचा हम्म कुठेच उल्लेख नाहीये. आणि कम्युनिटी बेस्ड जे लिटरेचर आहे, त्याचं हम्म. पण कुठे दिसलं नाही मॅडम. मग नाहीये त्याच्यावर ना, काय नाही करताय दिसत आहे. टीकेडीएल? नाही, ऍक्च्युली काय थोडासा अवेअरनेस कमी आहे सर आपल्याकडे. हां, कारण म्हणजे मी जैन लिटरेचर पण बघितलंय आणि ते खूप हायली रिच आहे. पण त्याचा कुठेच हम्म उल्लेख नाही. जेव्हा आपण बघतो ना, हम्म बौद्ध लिटरेचर आहे. म्हणजे हम्म. कम्युनिटी बेस्ड हा कुठेच विचार नाही झाला असं मला वाटतंय. नाही झालेलं आहे, नाही झालेलं आहे. म्हणजे आपण अजूनही त्याच्यासाठी अवेअर नाही असं म्हणायला पाहिजे. अवेअर नाहीये. म्हणजे त्या पॉइंटला खूप सिरियस नाही घेत आहेत. हां, हां. ठीक आहे मॅडम. ठीक आहे ना सर. अजून काही प्रश्न आहेत का? Any question? Are you all there? पहला प्रश्न Yes, पहला yes, madam. फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज आप है कि नहीं है, वही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. Present, madam. शिवानी मॅडम, Hi, madam. हॅलो. ओके. प्रेजेंटेशन Present, madam. प्रेजेंटेशन सुन के Yes, एकदम yes, yes, शांत ma'am. हो गए, एकदम शांत हो गए. हॅलो. हाँ सर, बोलिए. मॅडम, हिरवडे मॅडमला विचारायचं होतं, की मग हे कम्युनिटी बेस्ड लिटरेचर आणि ज्या डिशेस आणि ट्रीटमेंट आहे, हम्म. मग त्याच्याशी संबंधित काय करायला पाहिजे? किंवा तर इंडिव्हिज्युअली तर ते नाही करू शकत ना आपण इंडिव्हिज्युअली त्या गोष्टींसाठी. नाही सर, असं एक ग्रुप बनवा ना तुम्ही. जसं हां, आता सावजी आहे, सावजीवाल्याने एक ग्रुप बनवला हां, आणि जीआय अप्लाय केलं, हां. तर होऊ शकतं ना. हां, कारण त्या युनिक डिशेस आहे आणि त्या पण इव्हन आम्ही मराठा कम्युनिटी पण बघितले मॅडम. त्यांची जी पाटोडीची भाजी होते आणि हो. बाकी ज्या पाटोडीच्या भाजी होत्या, इव्हन सावजीच्या त्या भाजींमध्ये पण भरपूर फरक आहे. म्हणजे खूप फरक आहे. हम्म. त्यांची ती पाटोडी बनण्याची प्रोसेसच खूप वेगळी आहे. म्हणजे ह्या वेगळी गोष्टी आहे. कुठे दिसत नाही म्हणजे मध्ये हम्म. आलेल्या. नाही, आता करू शकतात ना, थोडं आता कॉन्सेप्ट आली की आपण प्रयत्न पण करू शकतो ना सर. सर ऍक्च्युली ना, मी ऍग्रिकल्चरल ऑफिसेस जे आहेत की नाही आपले हां, वनामती, हां. हां, तर हां. वनामतीला ऍग्रिकल्चरल ऑफिसर्सचे ट्रेनिंग होतात. आई विल टॉक इन हिंदी. हाँ. हां, हां. येस मॅम. वनामती में एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होता है. हां, तो मैं काफी साल से वो ट्रेनिंग्स में जा रही हूँ, तकरीबन 12-13 साल से जा रही हूँ वहां पे. हां, हां. वहां पे जब मैंने उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का बताई थी, सो हां, दे वर वेरी एक्साइटेड कि ये क्या है, ये हमको पता नहीं था. लेकिन अभी वो ऑफिसर्स के थ्रू उन लोगों ने तकरीबन 25 महाराष्ट्र से ऐसे जीआईस किए हैं. हां, हां. पहले उनको पता नहीं था, लेकिन जब उनको पता चला ना, तो उन्होंने बहुत जीआईस फाइल किए. अच्छा. हाँ. तो अभी इनिशिएटिव्ह लेने वाले चाहिए. म्हणजे येस, त्यांनी येस. कुठल्या कुठल्या चटण्या असतात की नाही, हां, हां. वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या, ते पण केलेले मॅडम, आहे. त्या तर हा. भरपूर आहे चटण्या. म्हणजे महाराष्ट्राचं फक्त ते तिथे 7-8च हम्म. जी हे दिसले डिशेस, जे काही जे आहेत. इव्हन आपलं सगळ्यात पहा, फेमस आपण महाराष्ट्रात आहे. बिर्याणी खातोय, पुलाव खातोय, बासमती राईस, पण आपण कधी हा विचार नाही केला ना की अरे ते आपलं युनिक कॅरेक्टर आहे, आपलं युनिक प्रोडक्ट आहे, आपल्या याच्यातच येतं ते. म्हणजे ते एन्व्हायरमेंटल ब्लेसिंगच आहे ना आपल्यासाठी, पण आपण त्याला येस. प्रोटेक्ट करायचा कुठेच नाही विचार केला. हां, हां, हां. ऍक्च्युली ते ती माइंडसेट तयार व्हायचंय अजून.
येस मॅडम. जसं पेटंटसाठी पण थोडं काही आपण त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केलं. मी तुम्हाला काही उदाहरणं दाखवली. तर ते लोक काय करतात, UK USA वाले लगेच पेटंट फाईल करून देतात. पण आपल्याकडे तेवढं असं एन्थुझियाझम नाही आहे की लगेच पेटंट फाईल करू दे. नाही मॅडम, त्यांचं बेसिकली ते चोरी आधीपासनं चोरीच करतात ना, ते सगळं हम्म, त्याच्यावर आधारित आहे त्यांचं, त्याच्यामुळे. हम्म. मला डिझाईन बद्दल विचारायचं होतं. रिडिझाईन जे केलेलं आहे, मग त्याला आपण पेटंट करू शकतो ना, एखाद्या डिझाईनला रिडिझाईन केलं तर? हा, तुम्ही अप्लाय तर करू शकता. एक्झामिनर वर आहे. एक्झामिनेशन होतं ना त्याचं थरली. हा, नाही म्हणजे एखादी डिझाईन ऑलरेडी आहे, पण मग आम्ही म्हटलं की याच्यात काही एफिशियन्सी करतो, याला रिडिझाईन करतोय. दॅट विल बी ओके ना मॅडम? फाईल करू शकता ना तुम्ही. ओके मॅडम, ठीक आहे. चलिए, थांबायचं मॅडम इथे? हो. ओके, थँक्यू वन्स अगेन मॅडम. आपण भेटूया परत परवा सकाळी. यांचा PBS वाला टॉपिक आहे मैडम. ओके, सो ठीक है ना थैंक यू. मैडम. हाँ, पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों को कुछ क्वेरी होगी पर्सनल, जो आपके कैश के प्रमोशंस के बारे में वगैरह, मैडम का 26 को सेशन है मॉर्निंग में 10:30 बजे, तो आप वो निकाल के रखिए. पहले मैडम का प्रेजेंटेशन रहेगा, डिस्कशन रहेगा, उसमें आप वो क्वेरीज रेज कर सकते हैं. बहुत Yes, अच्छा ma'am. सेशन होता है, क्योंकि बहुत लोगों को जो भी कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरवड़े मैडम, वंस अगेन फॉर योर वंडरफुल एंड इन्फॉर्मेटिव मॅडम, सेशन. आपल्याकडे जो PBS चा फॉर्मॅट लागू आहे ना, तो हाँ, प्लीज जर मिळेल तर हो मॅडम मॅडम सगळं सांगतात, मॅडम सगळं सांगतील. हे सगळे एकदम सुरुवातीपासनं सगळे त्याच्यामध्ये काय काय अमेंडमेंट्स आलेत, काय काय चेंजेस आहेत, सगळं. तर ठीक आहे. डोंट वरी, एकदम मॅडम, फ्रीली सगळं काही तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर होतील. येस मॅडम, ठीक है, थँक्यू. चलिए, थैंक यू सो ठीक है. मच मैडम वंस अगेन. थैंक यू. थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे रुकते हैं. Tomorrow we will meet at 11 o'clock. First we will having seminars of 6 participants. So be ready with that. मॅडम ते पार्टिसिपंट आपला थँक्यू मॅडम. Thank you all of you. थँक्यू मॅम. Thank you. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you.